माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, भरत तिवारी की जो हत्या हुई है और एफआईआर दर्ज हुआ है 6 दिन बाद आपकी पुलिस ने किया है, उस संबंध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ कानूनी पहलुओं की जानकारी दे दें और आपके डीजीपी को भी दे दें, क्योंकि कोर्ट को भी मॉनिटर करना है इस मामले में। तो सबसे पहले मैं रेफर करूंगा, सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जो लैंडमार्क जजमेंट माना गया है, वो शाकिरी बसु वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स है। वही जो आपके गुरु जोगी जी हैं उन्हीं के स्टेट का, लेकिन उनके पहले का। तो वो केस है अपील क्रिमिनल 1685 ऑफ 2007। पिटिशनर शाकिरी बसु, रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, डेट ऑफ जजमेंट 7/12/2007, बेंच था जस्टिस ए के माथुर एंड जस्टिस मार्कंडेय काजू का। इसमें मामला हुआ था कि क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं जाते हुए, क्योंकि लोगों की आदत है कि कानूनी चीज़ों को लोग नहीं सुनते हैं और हवाई की बातों को सुनते हैं, जनरली जो ट्रेंड है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि उस जजमेंट के पैराग्राफ 13 में है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि द सेम व्यू वाज टेकन बाय दिस कोर्ट इन दिलावर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली 2007 SC 585. We would further clarify that even if an FIR has been registered and even if the police has made the investigation or is actually making the investigation which the aggrieved person feels is not proper, such a person can approach the magistrate under section 156(3) CRPC, and if the magistrate is satisfied, he can order a proper investigation and take other suitable steps and pass such orders as he thinks necessary for ensuring a proper investigation. All these powers a magistrate enjoy under section 156(3) CRPC. इसको और क्लियरिफाई, क्योंकि एक मामला आया था मेरे पास जो बिहार से जुड़ा हुआ मामला था और उसमें भी रिट फाइल हुआ था। उसमें भी कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह क्लियरिफाई किया कि अगर ये मामला आता है जहाँ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, पहले समझ लीजिए आप, तो उसमें यह कहा गया था कि अगर एज रिगार्ड द गिरवान दैट द एक्यूज्ड पर्सन आर नॉट बीइंग अरेस्टेड इन केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस एंड हीनियस ऑफेंस, the senior superintendent of police investigation officer shall take appropriate step keeping in view the law and judgment of the Honorable Apex Court on the subject. In the matter of the absconding accused, the IO must take immediate step to arrest him and exhaust all other procedures in accordance with law with utmost expedition. फर्दर इसी में एक आदेश और पारित हुआ जिसमें सिकरी बसु को रेफर किया गया था। This court has already reproduced the extract from judgment of the Honorable Supreme Court in the case of Shakiri Basu. In the light of the said judgment, this court directs that in all death cases, the learned magistrate in whose court the case is pending shall, without seeking any application from the informant, monitor the investigation. They are fully competent to take view as to whether a proper investigation is taking place or not. There are a long order, but right now still the accused are moving freehand. Not only that, after the institution of FIR that took 7 days, the FIR was produced before the police on 17 June. And perhaps after a lapse of 6 or 7 days, 23rd or 24th FIR was issued. That amounts to relinquishment in duty by the Superintendent of Police. Now the Superintendent of Police indirectly trying to influence, trying to threat, trying to divert the case.
and he visited yesterday, perhaps yesterday in the night, at the house of the informant. Informant are the poor people. They are not very much aware about the law. And your SP is acting against the provision of law. तो फर्स्ट यू शुड ट्रांसफर योर एसपी। 6 दिन तक साहब FIR दर्ज नहीं होता, उसके बाद किस मुंह से वो एसपी जाता है? उसमें शर्म को शर्म भी नहीं आती। दूसरा एक पहलू है कि पूरे इस जांच के दरमियान, इन्वेस्टिगेशन के दरमियान आपका कोई काउंटर स्पेशलिस्ट है, वो कुंदन कृष्ण शायद उसका नाम है। वो आदमी बहुत इनफेमस रहा है पूर्व में भी, और उसने जेल ब्रेक कांड में बहादुरी दिखलाते हुए जा करके वहाँ खुद चला गया था बिना प्रॉपर व्यवस्था के, और उसके कारण 6-7 कैदियों की हत्या हुई थी, जिससे बचा जा सकता था अगर वो बिना मतलब की बहादुरी नहीं दिखलाता तब। तो वह व्यक्ति इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनने में वो सैडिस्ट है। सैडिस्ट आदमी की मानसिकता होती है कि गलत चीज़ों से प्रसन्नता हासिल करना, जैसे खून देख करके प्रसन्नता हासिल करना। जबकि जजेज भी हीनियस से हीनियस ऑफेंडर को फांसी की सज़ा देते हैं तो दुखी होते हैं, क्योंकि उनकी कलम से किसी की जान जा रही होती है, उन्हें भी तकलीफ होती है क्योंकि मजबूरी है। लेकिन आपका ये कुंदन कृष्णन नहीं होता है। ये STF का DG है, और आपकी STF को भी आई थी, तो उसको भी जांच में शामिल किया जाए, वो भी अभियुक्त है, और कुंदन कृष्णन पर कार्रवाई की जाए। STF से तो तुरंत उसको हटाया जाए DG के पद से। और अभी मैं लिख रहा हूँ, अभी मैंने ड्राफ्ट कर लिया है, और प्रेसिडेंट को पहले लिख रहा हूँ, कॉपी आपको भेज दूंगा, कि कुंदन कृष्णन ने आज तक जितने इनकाउंटर किया है उसकी जांच की जाए। और सुप्रीम कोर्ट को भी मैं लिख रहा हूँ कि ये क्या अभी तक हमारी व्यवस्था ने, केंद्र की है और राज्य की, कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि जो इनकाउंटर से बचा जा सके, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग से बचा जा सके। हम एक रिफॉर्मिस्ट स्टेट हैं, हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, हमेशा आपको यह ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। मैं समझता हूं कि आप मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे, और अविलंब 24 घंटे के अंदर सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद मिस्टर सम्राट चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो देख नहीं रहे थे, बीच बीच में सुनना पड़ता है, नहीं तो बंद हो जाता है, समझ गए।